everyone, this is Neha Thakur and you're watching Audit Angle by Neha Thakur. So in this video, we're going to talk about a topic which is known as what is IPO and how it actually works. So let's begin with our topic first. What an IPO actually is. So an IPO stands for Initial Public Offering. Okay. So it is the first time अगर कोई private company अपने shares जो है वो sell off करके to the public at large and it becomes a publicly traded company. यानी कि private limited से अब वो limited बनने जा रही है by getting listed on either the National Stock Exchange or the Bombay Stock Exchange, right? So before this, the company is owned by the founders, the promoters of the company, early employees, private investors. So now in this whole video, we are going to talk about these three topics, that why companies launch IPO, step-by-step procedure of it, and how to actually apply as a retail investor. So let's begin with why companies do this, why companies launch IPOs. So basically, agenda क्या है companies का to launch IPO? There are four agendas basically. First is to raise a capital. Obviously, the main reason is money is to raise a capital. So money from selling the shares goes to the company, to early investors cashing out depending on the structure, for expansion, paying off debt, R&D and the acquisitions. Okay, so raising a capital is something which is the main agenda. Then the other one is the liquidity for the early investors. अगर जो venture capitalist है, तो जब जिन्होंने कंपनी में इनिशियल में इन्वेस्टमेंट की थी, now they have a way to sell off their shares, to liquidate their shares into a cash. So liquidity for early investors and employees. Third one is the prestige and credibility. Of course, अगर कोई कंपनी पब्लिकली लिस्टेड कंपनी हो जाती है, सो उसका एक अलग ही ऑरा और प्रेस्टीज होता है मार्केट में, एंड इट जनरली ब्रिंग्स द क्रेडिबिलिटी in the eyes of the public at large. And currency for acquisition. Publicly traded stock can be used to acquire other companies as well, right? So now let's begin with our second topic, that is the step-by-step procedure. So in this, we are going to talk about like how the IPOs are actually brought into this market. Okay, so first what we do is hire the bankers, file DRHP. So we are going to talk about each of these steps one by one. Then SEBI review होगा, final file RHP करेंगे. RHP is the red herring prospectus. Road show होगा, subscription allotment होगी, and final the listing day will come. Let's begin with our first step, that is appointment of intermediaries. Now who are these intermediaries? These intermediaries are the merchant bankers. Merchant bankers हो गए, आपके auditors हो गए, then underwriters हो गए. So basically companies जो है वो इनको hire करती है ताकि जो red herring prospectus, जो prospectus उनको issue करना है कंपनी को, तो SEBI के guidelines according जो है वो prospectus issue करना होता है कंपनी को. So कंपनी इन इंटरमीडियरीज को हायर करती है ताकि वो उनको नेविगेट कर पाए कि उनको क्या क्या चीज़ें डालनी चाहिए उसके अंदर, सो दैट सेबी शुड नॉट डिसअप्रूव दैट prospectus. So this is basically the role of the intermediaries, and these intermediaries are someone who should get license from the SEBI only. Now the second step comes कि आफ्टर इंटरमीडियरीज नेविगेट करते हैं कंपनी को, द सेकेंड कम्स इज अब कंपनी ड्राफ्ट करेगी अपने रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस को. सो DRHP का फुल फॉर्म ही इसका मतलब होता है कि ड्राफ्ट ऑफ रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस. ओके, नाउ दिस ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस इज फाइल्ड विद SEBI. इट कंटेन्स कंपनीज बिजनेस मॉडल, उसके फाइनेंशियल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, प्रमोटर्स डिटेल्स, सब कुछ होता है उसके अंदर. कंपनी कैसे
कंपनी का रिस्क फैक्टर क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशंस क्या क्या रहे हैं अभी तक, हाउ मच हैज़ बीन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना रहा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना रहा है. सो इट शुड ऑल बी इंक्लूडेड इन दैट DRHP. उसमें रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं कंपनीज के, कंपनी के कॉम्पिटिटर्स क्या है. सो A to Z एवरीथिंग इज मैंशनड इन दैट DRHP एक्सेप्ट 2 थिंग्स. एक तो उसमें शेयर प्राइस जो है वो मेंशन नहीं होता, और दूसरा जो है वो कितने शेयर्स जो है वो कंपनी इशू करना चाहती है वो मेंशन नहीं रहता DRHP में. सिंस इट इज़ अ ड्राफ्ट, तो ड्राफ्ट जो है वो सेबी को भेजना है फॉर द रिव्यू. अब थर्ड प्रोसीजर विल बी सेबी रिव्यू. अब जो DRHP कंपनी ने जो सेबी को ये किया, फाइल करी है, तो सेबी अब उस DRHP, उस ड्राफ्ट ऑफ रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस को एग्जामिन करेगा, उसको अच्छे से देखेगा कि कौन कौन से क्लॉजेज इज़ मैंडेटरी एंड उसको इंक्लूड करना चाहिए, एंड कौन कौन सी चीज़ों को डिस्क्लूड करना चाहिए, वहाँ से हटा देना चाहिए. सो नाउ सेबी विल रिव्यू एंड उसके बाद वो अपना फाइनल डिसीजन देती है. सो सेबी एग्जामिन्स द DRHP एंड टिपिकली रेजेज ऑब्जर्वेशंस, clarifications or additional disclosure it wants. The company and the bankers respond, and the back and forth can take a few weeks or a couple of months. So this is the whole third step. After the SEBI review, सेबी ने ये बता दिया कि क्लैरिफिकेशंस बता दिया अपनी तरफ से कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, क्या क्या नहीं करनी है. आफ्टर दैट कंपनी विल रेक्टिफाई दोज थिंग्स एंड उसके बाद वो फाइनल RHP बनाएंगे, यानी कि रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस बनाएंगे, फाइनल RHP. So once SEBI clears the draft, the company files the final red hearing prospectus, which now includes the price band. Okay, so इसमें अब जो है वो प्राइस बैंड होगा कि कितने पर शेयर पे, मतलब कितने लाइक 100 to 150 का ये एक प्राइस बैंड हो गया. तो वो एक मेंशन्ड होगा वहाँ पे. जब भी कंपनी जो है वो प्रोस्पेक्टस IPO निकालती है तो अपने प्रोस्पेक्टस में फाइनल अमाउंट कभी नहीं लिखती. ओके, देयर इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अ बैंडविड्थ ऑफ द प्राइस, एंड वहाँ पे ये भी मेंशन होगा कि कितने शेयर्स जो है वो कंपनी इशू करना चाहती है टू द पब्लिक एट लार्ज. इट ऑल्सो गेट्स इन प्रिंसिपल लिस्टिंग अप्रूवल फ्रॉम, एंड इसको जो है वो NSE एंड BSE से भी अप्रूवल मिल जाती है. Now the fourth steps comes out to be the marketing and anchor investor allotment. So now अब क्या होता है ना कि after this prospectus has been released to the market, in the market, अब इसकी marketing करी जाती है. So basically merchant bankers जो होते हैं ना वो different road shows करते हैं, global tours जो है वो organize करते हैं टू द इन्वेस्टर्स, टू द डिफरेंट इन्वेस्टर्स, एंड जहाँ पे वो लोग बात करते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी का ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट क्या है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या क्या है, एंड वो परसुएट करती है इन्वेस्टर्स को ताकि वो कंपनी के शेयर्स को बिड करें. ओके, सो इसमें जो है वो अब एंकर इन्वेस्टर्स आ गए. सो बेसिकली अब एंकर इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, एंकर इन्वेस्टर्स जब मर्चेंट्स ने इनको पिच किया, तो एंकर इन्वेस्टर्स द डे बिफोर द IPO गेट्स टू द पब्लिक, ठीक है, उससे जब IPO पब्लिक होने वाला होता है उससे एक दिन पहले जो है वो एंकर इन्वेस्टर्स बिडिंग करते हैं शेयर्स की कि उनको इतना शेयर्स लेना है इतने प्राइस बैंड पे, एंड उसके अगले दिन जो है वो शेयर्स अवेलेबल होते हैं टू द पब्लिक एट लार्ज. सो दिस is the fifth procedure. Now the subscription window opens, so this is going to be the sixth procedure. तो इस पे जो है अब IPO is now generally available for the public at large for the period of 3 to 5 working days, and national holidays and weekends पे of course it's not going to be there. So now as I told you before कि कंपनी जो है वो एक प्राइस बैंड लेकर आती है, उसने अपने प्रॉस्पेक्टस में फाइनल प्राइस नहीं लिखा है, and in order to discover the final price of the shares, the company generally brings this price band.
तो अब वो देखना चाहती है कि पब्लिक एट लार्ज कितने कितने अमाउंट पे जो है वो बिडिंग करती है, एंड देन द फाइनल प्राइज इज डिसाइडेड. सो दिस discovering of the price, the final price, is known as book building method. This is the book building method. Now I am going to explain you कि जब funds जो है वो कैसे ब्लॉक हो जाते हैं when the IPO, when you bid for the shares. So suppose आपका जो कंपनी है XYZ लिमिटेड, सॉरी प्राइवेट लिमिटेड, ये तो हुआ नहीं है, उसका प्राइस बैंड है अराउंड 100 to 150 रुपीज़ का. ठीक है, रमेश एक बंदा है, उसने बिड किया 100 शेयर्स एट ₹100 पर शेयर एंड पूरे 10,000 जो है वो लगाना चाहता है कंपनी में. नाउ दिस 10,000 विल बी समथिंग विच इज़ ब्लॉक्ड बाय इट्स बैंक. ये डेबिट नहीं होंगे 10,000 बट इट विल बी ब्लॉक्ड एज सून एज अगर रमेश को ये शेयर्स अलॉट हो गए तो ये इमीडिएटली 10,000 जो है वो उसके बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाएगा एंड दिस 100 शेयर्स विल बी क्रेडिटेड टू हिज डीमैट अकाउंट. ओके, सो बेसिकली हमें कंपनीज को ASBA के रूल्स एंड ASBA फॉलो करना होता है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय द ब्लॉक्ड अमाउंट. 7th प्रोसीजर इज अलॉटमेंट एंड रिफंड्स. अब जिसको अलॉट हुए हैं शेयर्स उसको तो हो जाएंगे, तो नाउ अब क्या होता है ना कि कंपनी ने एक फाइनल प्राइस जो है वो सेट कर लिया होता है. आफ्टर द बिडिंग गेट्स ओवर एक फाइनल प्राइस सेट कर लिया होता है एंड सपोज ये XYZ कंपनी जो है उसका शेयर फाइनल प्राइस आया अराउंड लाइक 120 एंड रमेश ने तो 100 बिड किया था, तो नाउ उसको ये शेयर्स अलॉट नहीं होंगे. दिस 100 शेयर्स विल नॉट बी अलॉटेड टू रमेश, दैट इज़ उसके अकाउंट से कोई पैसा डेबिट नहीं हुआ. बट अगर ये XYZ लिमिटेड का ₹100 होता फाइनल प्राइस, तो ये रमेश को पूरे 100 शेयर्स जो है वो अलॉट हो गए होते. So after the window closes, the registrar determines the final issue price based on the demand and finalizes on the basis of the allotment. ठीक है, अगर IPO जो है वो ओवर सब्सक्राइब्ड है, अलॉटमेंट इज ऑफन डन बाय लॉटरी सिस्टम फॉर द रिटेल. ओके, दिस इज समथिंग दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. उसके बाद द लास्ट स्टेप इज द लिस्टिंग. नाउ यूजुअली the stocks list on these two stocks are there in India. First is the NSE, that is National Stock Exchange, and the second one is the BSE, Bombay Stock Exchange. This stock list on these two usually within the three working days after the allotment finalizes. तो इसके बाद जो है वो ट्रेडिंग बिगिन हो जाती है. मार्केट डिटरमाइंस द लिस्टिंग प्राइस विच कैन डिफरेंट. ओके, सो फिर उसके बाद ट्रेडिंग बिगिन हो जाती है एंड द नॉर्मल प्रोसीजर ऑफ ट्रेडिंग बिगिन्स फ्रॉम हियर. Now the third topic comes out to be for us that how to actually apply as a retail investor. So this is the step-by-step procedure. First you have to open a demat account or a trading account with the with these Zerodha, Grow, ICICI Direct, एक IND Money भी है. So इससे you have to open your demat account. Then you have to apply through your brokers app. These are known as brokers app, right? Or the UPI based process. You specify UPI ID. आप अपना UPI ID देते हो and approve a mandate request for the blocked amount. आपके अब पैसे जो है वो डेबिट नहीं होंगे, बट आप जो है वो एक मैंडेट क्रिएट कर दोगे ताकि जब एज सून एज अगर आपको शेयर्स अलॉट हो जाए तो कंपनी जो है वो पैसे जो है वो डेबिट कर ले. ठीक है. रिटेल इन्वेस्टर्स कैन टिपिकली इन्वेस्ट अप टू, अब जो रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो टिपिकली 2 लाख रुपीज़ पर एप्लीकेशन जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं. ट्रैक अलॉटमेंट स्टेटस on the registrar's website using your PAN or the application number. Okay, so this is the whole
So this is the whole concept of IPO and how it actually works, the step-by-step procedure of it. I hope you like this video, and if you have anything related to IPO, if you want to share anything related to that, do let us know in the comment section. Till then, I am signing off.